سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 3، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 7۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے باپا جان، میں یہیں فیضان مدینہ کی شاپ پہ کام کرتا ہوں، تو باپا کچھ عطر کے نام اصل ہوتے ہیں اور ان کا نام بدلتے جاتے ہیں، جیسے خوشبو عطار، خوشبو مشتاق۔ تو کسٹمر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی خوشبو عطار دے دیں ہمیں 30 والی 50 والی۔ تو باپا پھر وہ کسٹمر کہتے ہیں کہ باپا یہی عطر لگاتے ہیں، یہ باپا کے نام سے منسوب ہے۔ باپا نام کچھ اور اس کا ہوتا ہے، اور لکھ دیتے ہیں ہم سپر خوشبو عطار، سپر خوشبو مشتاق۔ اور باپا خوشبو مدینہ یہ بھی لکھتے ہوں گے۔ باپا سپر مدنی چینل کے نام سے بھی ہے۔ اچھا، سپر سے کم نہیں ہے کیا؟ باپا بعض کسٹمر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ باپا والی ہمیں ٹوپی دے دیں، جو باپا چادر استعمال فرماتے اس طرح ہی چادر دے دیں ہمیں۔ باپا برائے کرم اس بارے میں رہنمائی فرما دیجئے، کیونکہ ہمیں بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ 30 والی سپر خوشبو عطار دے دیں۔ دنیا پسند کرتی ہے عطر گلاب کو، لیکن مجھے نبی کا پسینہ پسند ہے۔ تو اگر میری پسند کی خوشبو ہے آپ کے پاس تو مجھے بھی چاہیے۔ باپا پھر کسٹمر آ کے کہتے ہیں کہ باپا جو استعمال تو میری پسند کا بتا دیا نا میں نے آپ کو، لیکن مجھے نبی کا پسینہ پسند ہے۔ تو بولو باپا کہ یہ خوشبو پسندیدہ ہے اور یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ نہ کہنے میں کیا بول، زبان کو کیوں لوچے ولتے ہیں آپ؟ منع کر دیں آپ، نہیں ہے تو پھر بولیں گے یہ خوشبو عطار نام کیوں رکھا ہے، تو رجوع کر لیں گے، ہم آئندہ نہیں رکھیں گے، یہ کر لیں۔ نہیں ایسا نام رکھیں کیوں جس میں اپنے پھنس جائیں۔ باپا بعض دفعہ جو پیکنگ والی عطر آتی ہیں تو اس میں کسٹمر آتے ہیں، وہ کھول کے چیک کر لیتے ہیں، ہم ان کو منع بھی کرتے ہیں کہ یہ چیک نہیں کرے، کمپنی کی عطر ہے، اس میں ہم فیل نہیں کر سکتے۔ تو باپا وہ چیک کر لیتے اور بوٹل بند کر کے رکھ دیتے۔ تو اس بارے میں باپا کیا حکم ہوگا کہ پھر ہم دوسرے سلائم بھائی آتے ہیں ان کو دیتے ہیں؟ کھولنے سے کیا اس کو نقصان ہوتا ہے؟ یعنی کہ باپا جو پیکنگ کھولی، اب وہ رولر لگا ہوتا ہے، اس سے اپنے ہاتھ پہ لگا لیتے ہیں، تو بعد میں باپا اس کو فل کر نہیں سکتے، یعنی کہ کمپنی کی ہوتی ہے۔ اچھا، اور اس میں ڈال نہیں سکتے، اور لگنے میں ویسے تھوڑی استعمال ہوتی ہے۔ عرف کیا ہے باپا؟ لگ جاتی ہے ہاتھ ہتھیلی پہ۔ ایسی مطلب عرف ہوتا ہے، جیسے کہ عطر بیچنے والے عام طور پہ لگاتے ہی ہیں، عطر کی جو شیشی ہوتی ہے ان میں لگا کر دیتے تو چیک کرواتے ہیں، تو ہے عرف اس پر۔ تو اب اس میں کیا مطلب دارالفتہ علیہ سنت سے ہی رہنمائی لی جا سکتی ہے کہ عرف و عادت کے مطابق بعض اوقات رعایتیں ملتی ہے۔ ہاں، مگر یہ کہ ہم اس کو اسی طرح سیل کر دیں گے دھوکہ دینے کے لیے کہ اس میں سے کچھ بھی استعمال نہیں ہوا، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اگر ہم بیچتے وقت یہ کہہ دیں کہ بھئی ہمارے مطلب بعض گاہک یعنی گاہک آتے ہیں وہ کبھی اس کو چیک بھی کرتے ہیں، یہ شیشی اب چیک کرنے میں تھوڑا سا عطر ذرا اگرچہ آدھا قطرہ ہی صحیح کم تو ہوتا ہے،
یہ بات کر کے اس کو دے دیا جائے. اس کا اگر کوئی باقاعدہ حل ان کو عطا فرما دیں، کیونکہ مقدس نام جیسے مدنی چینل کا نام لیا یا اس طرح مقدس ناموں کے ساتھ وہ رکھنے پڑتے ہیں، تو اس کا کوئی باقاعدہ حل کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے عشق کو میں للکارتا ہوں. آپ نے کسی عطر کے اس پہ لکھا خوشبو مدینہ، اب کسی نے سونگا اس کو اور منہ بگاڑا، آپ کو مزہ آئے گا؟ اب اس کا ناک بند ہے تو وہ یوں کر رہا ہے. تو یہ مطلب آپ کے عشق کی اور مطلب غیرت کی بات ہے نا یار، کیسے مزہ آئے گا یار؟ پھر بولے گا یار یہ میرے کو پسند نہیں ہے، یہ بھی مزہ نہیں آئے گا. تو اپنے نام ایسا رکھے. چلو میں تو ایسے ہی آدمی ہوں، لیکن ظاہر جو مجھ سے عقیدت محبت رکھتا ہوگا، خوشبو یا عطار اسے مزہ نہیں آئے گا تو آپ کو بھی مزہ نہیں آئے گا. مگر یہ کہ ہرس اتنی غالب ہوتی ہے بکری کے لیے تو سب گوارا ہے. تمہارے باپ کی خوشبو میرے کو اچھی نہیں لگی تو آپ کو تھوڑا جھٹکا لگے گا نا یار. تو خوشبو مدینہ کے لیے کوئی خدا نخواستہ بولے تو مزہ نہیں آنا چاہیے. تو ایسا نام میرا تو مشورہ ہی کہ نہ رکھا جائے. تو برسوں سے اس طرح کے نام سے مطلب نہیں مطمئن. میں اپنا قصہ بھی سناتا رہتا ہوں. بہت پہلے میں اگربتیاں جب بیچتا تھا تو میں نے قادری اگربتی بنائی تھی. اس کی پیکٹ ایک بار میں نے ایسے مطلب میں گھر میں ہی بناتے تھے، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے، تو ایک کا دکا بعض دکانوں پر دے آتا تھا میں. شاید اس وقت تو یہ 12 روپے درجن، ایک پیکٹ 1 روپیہ کا، اس میں شاید 20 اگربتیاں. تو ایک بار میں نے بس گلی میں دیکھا اس کو پیکٹ کو، قادری اگربتی میری، اور جو پاؤں میں کچلنا، اور معاذ اللہ بس میری عقل آ گئی میرے. غوث پاک نے اگر مجھ سے فرما دیا، چاہے ایسی محبت تجھے مجھ سے تھی کہ میرا نام تم نے لوگوں کے قدموں میں ڈال دیا، تو میں نے اس کا اپنا خرچہ کیا، نہیں اب یار قادری اگربتی نہیں. پھر میں نے اس کا نام قومی اگربتی کر دیا، اس کا بنوا لیا لیبل وغیرہ. یہ اس کو برسوں دعوت اسلامی سے پہلے کی بات ہے. تو یوں آپ کو بھی پتہ نہیں کب جھٹکا لگے گا. جھٹکے کا انتظار ہے، میرا کہنا کافی نہیں ہے. اب وہ ایک بوری رکھی ہوئی تھی، بوری میں کچھ کچرا بھرا ہوا تھا سامان، اس پہ وہ کوئی لفظ الہی کر کے کوئی کمپنی کا نام لکھا ہوتا، الہی کمپنی یا کچھ، کھڑا رہ گیا ٹھٹک کے. اس پر کوئی چیز تھی وہ بھی میں نے ہٹا دی. اپنے کسی کے گھر جانا ہوا تو مجھے مزہ نہیں آیا. اب میں کیا کروں یا کیا کر سکتا ہوں؟ ہر چیز پر ایسے ایسے الفاظ لکھتے ہیں کہ پوچھو مت. عبداللہ نام سے کوئی لکھا آپ نے، اور وہ زمین پر لفظ اللہ اس میں موجود ہے عبداللہ میں. تو رکھتے ہیں لوگ نام، کیا کریں یار. تو ہم اپنے طور پر بچتے رہیں ان چیزوں سے. جس کو یہ سمجھ آتی ہے اس کو بچنا چاہیے. اللہ روزی کا رزاق ہے یار. ضروری ہے کہ نام سے ہی بکے. چیز ایسی ہو کہ بے نام بھی بکے گی یار. ڈھونڈتے ہوئے لوگ آئیں گے کہ یار ادھر سے جو خوشبو لی تھی نا بڑی اچھی تھی یار. ٹھیک ہے، پھر بھی کوئی سا دنیا داری کا نام. ہم تو مثال دیتے تھے کہ مال کھینچنے کا جال اسٹور. مال کھینچنے کا جال میں اب کیا مدینہ اسٹور رکھیں اپنے نام، اور کل جا کر کوئی بولے گا یار مدینہ اسٹور سے وہ چیز لی تھی تو یوں ہو گیا. تو کوئی سی ہلکی بات کر دے، پھر مزہ نہیں آنا چاہیے لیکن آتا ہوگا. وہ نوٹوں کا غلبہ ہو جاتا ہوگا محبت کا. نام تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ بس دنیا داری کے نام. کام بھی عام طور پہ دنیا داری کا ہے. خیر مدینہ اسٹور ہو یہ کوئی رکھے تو جائز ہے، گناہ نہیں ہے. خوشبو مدینہ بھی رکھے نام تو گناہ نہیں ہے. سب سمجھتے ہوں گے خریدار کہ یہ بے آئینی مدینے کی نہیں ہے، یہیں کی ہے. لیکن میری تھنکنگ یہ کہ نہ رکھا جائے، کہ اس میں ادب ہماری مطلب عشق کی کسوٹی ہو جائے گی. آپ کو بولے گا منہ بگاڑے گا ہم سے لڑائی تو کرنے سے رہے. مزہ نہیں آنا چاہیے. عشق یہ بولتا ہے کہ مزہ نہیں آئے تو اس طبیعت پر مزہ نہیں آنا چاہیے کہ مجھے ایسا کیوں مطلب برا کیوں نہیں لگا. لیکن زبان کنٹرول میں، لڑائی نہیں کرنی ہے. آپ نے ایسا نام رکھا تو اس نے منہ بگاڑا نا، اور اس کو سمجھ نہیں ہے بیچارے کو. اس کی نیت بھی نعوذ باللہ لفظ مدینہ پر نہیں ہے. آپ نے جو مدینے کے نام پر جو آئٹم دیا ہے نا
उसी पर वो तो मुंह बिगाड़ रहा है ना। तो ये तो एक एक चीज पर मेरी पसंद की मोहरें लगाते हैं बेचने के लिए, बेचने वाले हमारे, तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बात होगा तो मेरी पसंद की होती भी नहीं है, ख्वाब में भी नहीं पता होता, लेकिन मेरी तरफ मंसूब कई चीजें ऐसी मिलती होंगी दुकानों पर। तो अगर आपने कसदन ऐसा किया तो झूठ है, धोखा है। अब मैंने कभी इस्तेमाल कर भी ली तो इसको पसंदीदा कहना, इसकी भी तो कोई तहकीक हो ना कि आया पसंदीदा है या नहीं। अब मुझे आपने खुशबू दी, तोहफे में दी किसी ने, अब मैंने लगाई और ये बैठ गया, और मुझे इसकी बू पसंद भी नहीं है, लेकिन मैं लगा चुका, बैठ गया, आप बोलोगे यही पसंदीदा है, ये कैसे होगा? इंशाल्लाह मैंने नियत भी की है कि हर हफ्ते को इंशाल्लाह मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करूंगा, अपनी कटौती करवा के इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने कल भी शिरकत की थी मदनी मुज़ाकरे में और आज भी शिरकत की है, माशाल्लाह मुझे बहुत मजा है। बाबा पहले भी मैं मदनी काफिलों में सफर करता, आप दुआ फरमा दे, फिर अल्लाह आसानी फरमाए। लाइन चल पड़े आपकी इंशाअल्लाह। बाबा दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह ताला इस्तिकामत। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरकजी जामिअतुल मदीना फ़िज़ान मदीना दर्ज राबिया मोहम्मद बाबर अत्तारी। बापा जानी आपने अपनी पसंद की इतर तो इरशाद फरमा दी, मगर यह भी इरशाद फरमा दें कि आप इस्तेमाल कौन सी करते हैं? अल्लाह अल्लाह, ये बात भी सही है कि पसंद की तो अवेलेबल नहीं है, मैं कौन सी इस्तेमाल करता हूं, तो फिर ये कहाँ से मिलेगी? देखो मैं आपको बताऊं, मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि मैं गुलाब पसंद करता हूं, इतने गुलाब मिसाल के तौर पर, तो इसमें तो कई तरह की गुलाब आते हैं, तो उसमें फिर वो मुतलकन गुलाब की खुशबू पर हो, फिर वो खुशबू अत्तार बन जाएगी। यानी कि मतलब समझो 10 रुपए की बोतल से लेकर 100 रुपए की बोतल है ना, अलग अलग किस्म के, तो भाई खुशबू अत्तार हो गई, तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी अपने लिए। तो एक तरह की खुशबू तो शायद कम ही आदमी इस्तेमाल कर सके कि वो नाक हट जाती है, तो बदल बदल कर खुशबू लगाने को जी चाहता है, तो मैं भी बदल बदल कर इस्तेमाल करता हूँ। और मैं चंद किस्म की खुशबुएं मेरी है पसंद, तो वो मुझे तो खरीदनी पड़ती है, मंगवानी पड़ती है। और बाकी जो तोहफे में आती हैं तो वो अब खूबसूरत पैकेट बाहर मुल्कों से आते हैं ना, ये मुझे नहीं जमती, वो पैक ही पैक तोहफे में चली जाती है, होती बहुत कीमती है, ये पैकिंग बोतल खूबसूरत, तो ये होता है। अपने को जो पसंद है वो फिर मंगवानी पड़ती है, आपने बोल नहीं सकते ना, फिर वो बात खराब होती है, नाम इंशाअल्लाह मसाइल खड़े होते हैं। नहीं, मैंने कहा ना कि एक तरह की खुशबू नहीं है, चंद तरह की, एक तरह की नाक हट जाएगी, शायद जो इत्र ज्यादा लगाता होगा वो एक में उसको मजा भी नहीं आएगा, कि बाद में उसको खुशबू नहीं आएगी बार बार सूंघने से, उमूमन ऐसा होता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सवाल आया है, ये कह रहे हैं कि अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि जानवर ने छत से छलांग लगा दी और नीचे गिरने पर जो है ये जानवर को ज़िबा करके नीचे गिर गया है तो उसको ज़िबा करके खा सकते हैं, जबकि वो गिरने पर तड़प रहा हो। और आगे इन्होंने कहा है कि ज़िबा करते हुए अगर वो मर जाए, क्योंकि ज़िबा करने के बाद जानवर एक मखसूस टाइम तक तड़पता है, मगर जो जानवर छत से गिरा था जब उसको ज़िबा किया गया तो वो एक मखसूस टाइम तक तड़पा नहीं है, पहले ही मर गया है, तो क्या अब वो जानवर हलाल होगा या हराम होगा? उसकी अलामत अगर नहीं पता चलती ना तब वो अलामत है, ये तो तड़प रहा इसका मतलब है ही जिंदा ही, तो अलामत पता ना चले। जैसे अब बकरी है, वो बिल्कुल बीमार है, पड़ी है, अब इसको ज़बा किया तो उसने टांगे फैला दी तो हराम, टांगे सुकेड़ ली तो हलाल, मुंह खोल दिया तो हराम, दांत पीस लिए तो हलाल। इस तरह की अलामतें बाहर शरीफ में लिखी है। तो ये जानवर जो तड़प रहे हैं उसकी जिंदगी के आसार उसमें हैं, अब वो कितनी देर तड़पे वो घड़ी देखकर, तो ये तो कुछ भी नहीं है इसका, तो वो जानवर हलाल है। और इसका तलफ़्फ़ुज़ ज़िबहा नहीं है, ज़िबहा बोलते हैं ज़बा होने वाला जानवर, कुरान करीम में ज़िबहिन अज़ीम, तो वो है लफ्ज़ ज़बहा। अच्छा, बाहर शरीफ में लिखा भी हुआ है कि ज़बहा यानी काटना, ज़बा करना,
ज़बहा, और ज़िबहा माने वो जानवर जिसको ज़बहा किया जाए। ये तवज्जो नहीं रहती, ज़ेर ज़बर का हो जाता है मतलब। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फैज़ान मदीना के गिरदो पेश के अपने जो दुकानदार हैं ये हाजिर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, आपकी ज़ियारत कर रहे हैं और बड़े माशाल्लाह चेहरे इनके खिले हुए हैं। माशाल्लाह एक तरक्की है कि ये आ रहे हैं, महीने में एक दिन है ना, माशाल्लाह। कौन सा दुकानदार इस्लामी भाई आप बोले वाह मदीना मदीना इस्लामी भाई, उसमें क्या खसूसियात होनी चाहिए, क्या मतलब वो करे तो आप बोले मदीना मदीना इस्लामी भाई? नेक नमाजी होगा, दावत इस्लामी का मदनी काम भी करता होगा, भाग दौड़ करता होगा, मदनी काफिलों में सफ़र भी करता होगा, रोज़ाना फ़िक्र मदीना के ज़रिए मदनी इनामत का रिसाला पुर करके पहली तारीख जमा करवा देता होगा, हुस्न अखलाक का पैकर, साबिर शाकिर न के शातिर, तो ज़रा किसको अच्छा नहीं लगेगा मीठा बोलने वाला, मीठे मीठे मदनी काम करने वाला। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ है कि फैज़ान मदीना की दुकानों पर होते हुए भी यहाँ की बरकतों से दूर हैं हम, तो क्या ये चिराग तले अंधेरा की मिसाल नहीं? चिराग में कमजोरी हुई ना, चिराग तले अंधेरा है। वैसे चिराग तले होता ही अंधेरा है, थोड़ा सा हिस्सा है। वो चिराग जैसे मोमबत्ती है, उसकी लौ जाएगी ऊपर, नीचे थोड़ा सा अंधेरा होगा। यानी ये कि चिराग तले तो होता ही अंधेरा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी देंगे कि चूंकि ये फैज़ान मदीना के दुकानदार है इसलिए मतलब, तो ये क्या बुरे लोग हैं जो बैठे हुए? ये बुरे लोग होते तो यहाँ बैठे ना होते ना, कुछ तो दीन से मोहब्बत होगी जब तो बैठे। तो आते ही ना बेचारा। ये भी एक ने फरमाया ना कि मैं मदनी मुज़ाकरे में आया था, रोज आऊंगा हर हफ्ते को। नमाजें भी ये सारे पढ़ते होते हैं, नमाजें फैज़ान मदीना में को बराबर में पढ़ के आते होंगे, बारी बारी मस्जिद है ना अपनी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद असलम अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ। प्यारे बाबा जान, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम दावत इस्लामी के मदनी माहौल में नेक बनने के लिए आए थे, तो आपने हमें नेक बनने के लिए मदनी नामत का रिसाला अता फरमाया। तो आज हम गौर करते हैं कि 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, मगर अब तक हम मुकम्मल मदनी नामत पर आमिल नहीं हो सके। तो ऐसा कौन सा अमल किया जाए कि हम मुकम्मल मदनी नामत के आमिल बन जाएं? रोजाना हम फिक्र मदीना के जरिए रिसाला पुर करेंगे तो ये इस्तिकामत की सूरत बनेगी। जो हम जिस पर अमल नहीं हो तो उस पर गौर व फिक्र करें कि क्यों नहीं अमल हो रहा, तो इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे, दुआ भी मांगते रहेंगे, इसके फवाइद फजाइल पर नजर रखेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मंजिल तक पहुंची जाएंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद आमिर अत्तारी। बाबा जान, सवाल ये है कि बैरून मुल्क में मेरे साथ हुआ भी ऐसा, तो जो मेरे साथ नमाज पढ़ रहा था जैसे ख़त्म हुई तो वो अरबी में मुझे कहना शुरू हो गया, तो मुझे इतनी नहीं आती थी कि मैं उसको ब्रीफ कर सकता। ऐसा कहना सही है कि मुझे अरबी नहीं आती? आना माफ़ी मालूम कलाम अरबी। हाँ, तो नहीं आती तो कहने में क्या हर्ज है? हम लोगों को मतलब ये भी अरबी में बोलना है ना कि मुझे अरबी नहीं आती। हाँ, तो एक जुमला रट लिया तो क्या हुआ? यानी कि हमारे पाकिस्तानी जो है ना वो अरबी बोलते, वो अरबी कि न टांग सलामत रहती है, न दस्ते मुबारक, हाथ मुबारक सलाम रहता है, न कदम मुबारक सलाम रहता है, और गर्दन भी उड़ा देते हैं, और वो भी आदी हो जाते हैं, उनको भी समझ आती होती है कुछ ना कुछ कि क्या कहना चाहता है। और ये अरबी बोलते हैं तो ये पाकिस्तानियों को भी समझ आ जाती है कि बोलना क्या चाहता है, इन्हें बार ऐसा समझ आ जाती है। कहा था कि जब आपके साथ इस तरह को बदतमीजी वाले अल्फाज बोले, आप बोले मुझे अरबी आती नहीं, बस बात मुख्तसर करके बात खत्म कर दें। अच्छा, यूं है कि आपको अरबी आती हो और फिर भी कहेंगे नहीं आती? जी जी बाबा जान, यही पूछना चाह रहा हूँ। ये तो झूठ हुआ ना। अगर आती है तो, नहीं आती तो बोल दिया अगर नहीं आती तो सही है, नहीं वो तो धोखा हुआ, झूठ हुआ कि मुझे नहीं आती। चुपचाप सुन ले, कुछ भी ना बोले कि नहीं आती बोलना जरूरी है, तो वाकई वो भी पकड़ सकता है कि तुम ये अरबी में तो बोल रहे हो कि मुझे नहीं आती।
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जामिअतुल मदीना मरकज़ दौरा हदीस शरीफ। सवाल अर्ज़ ये है कि एक ज़ैद जो सारी उम्र उसने सूद का कारोबार किया और वो मदीना शरीफ में रमज़ानुल मुबारक में गया और आखिरी अशरे का इतिकाफ़ किया, उसके बाद उसका इंतकाल हो गया, जन्नतुल बकी में मदफन हुआ, क्या उसकी मौत पर रश्क करना चाहिए? और दूसरा यह है कि जो मदीना शरीफ में जाते हैं क्या सरकार अलैहिस्सलाम उनकी हाज़िरी कबूल करते हैं तभी बुलावा मिलता है? तो मदीना शरीफ में मरना सादत है। अब नेकूकार या गुनाहगार इसकी कैद तो नहीं है कि सिर्फ औलिया किराम होंगे, उनको मदीने में अगर वफात होगी तो वो काबिल रश, गुनाहगार है तो वो मरा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, मुसलमान है, अगर सूदखोर है तो अल्लाह ताला उसको बेहिसाब मगफिरत करे, हम दुआ तो कर सकते हैं, इसाले साफ कर सकते हैं। तो यहाँ जो जितने बेनमाजी हैं, बेनमाजी भी तो गुनाहगार है, झूठ बोलने वाला, गीबत करने वाला, तो यहाँ क्या गुनाह नहीं है अपने वतन में? या गुनाह कौन नहीं करता है? अल्लाह जिसको महफूज रखे। तो वो भी अगर सूदखोर था तो गुनाहगार था। सादत है उसके लिए कि मदीने में जन्नतुल बकी में उसको मदफन नसीब हो गया। रश्क करने में क्या है? हबीब आजमी मशहूर बुजुर्ग है रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये इनका भी सूद का काम था। इनके घर में कहा कि आज खाने को कुछ नहीं है, कुछ ले आओ, तो ये बोला ठीक है ले आता हूँ। तो इसमें ये जब गुजर रहे थे तो बच्चे कुछ खेलते हुए वो दूर दूर हटने लगे, हट जाओ हट जाओ, ये सूदखोर हबीब अजमी सूदखोर आ रहा है, इसके पाँव की गर्द कहीं हम पर ना पड़ जाए। इनको चोट लगी तो हो मैं इतना बुरा हूं। फिर ये गए उसके पास, तो उसने कहा भाई रकम तो नहीं है, ये हमारे पास सीरी है बकरी की। उसने कहा सूद में मेरा सूद बनता है तुम पर, तो ये दे दो। इस सीरी उठा लाए। अब वो सीरी जब हांडी में डाली पकाने के लिए घर में बच्चों की अम्मी ने या बीवी ने, तो वो खून बन गई गालिबन। तो बीवी ने कहा देखो अब तुम्हारी मतलब हालत यहां तक पहुंच गई है। तो ये भी इन्होंने भी चोट खाई कि एक तो बच्चों ने चोट मारी थी और फिर ये गालिबन हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था, उनकी खिदमत में तौबा के लिए हाजिर हुए। और तौबा करके जब ये पलटे, वही बच्चे खेल रहे थे, तो हट लो हट जाओ, हमारे गंदे कदमों की गर्द कहीं इनके कपड़ों पर ना पड़ जाए कि ये तौबा करके लौटे हैं। इस तरह की हिकायत उसमें है तज़किरतुल औलिया में। तो कुछ पता नहीं है। तो अब वो सूदखोर अगर थे भी तो ऐन मुमकिन है उन्होंने सच्ची तौबा कर लियो, मक्के शरीफ में कर लियो, मदीने पाक में कर लियो, खुदा न खासा ना भी की हो, तब भी हम मतलब ये थोड़ी कह सकते हैं कि चूंकि ये सूदखोर थे जिंदगी में तो ये अब जहन्नम में चले गए। कुछ पता नहीं, अल्लाह की रहमत। तो अल्लाह ताला बेहिसाब बख्श दे तो उसकी मर्जी है। अलबत्ता काफिर जो कुफ्र पर मरेगा, जो भी कुफ्र पर मरेगा, उसके लिए बख्शिश की सूरत ही नहीं है, वो तो हमेशा दोज़ख में रहेगा। मुसलमान चाहे कितना ही गुनाहगार हो, अल्लाह चाहे बेहिसाब बख्श दे तो उसके करम से सब कुछ हो सकता है। इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूब जमीआ, कि बेशक अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को मुआफ करने वाला है। मैं एक बचपन की बात करता हूँ, मैं बचपन से मुराद लड़कपन के लिए, लेकिन बहुत पुरानी बात है, पता नहीं मेरी दाढ़ी भी निकली थी या नहीं। तो हमारे इलाके में एक शख्स था, यानी कि वो यूं कह सकते हैं कि वो खानदान जालिमों का खानदान। वो मतलब बत्ता लेना और मारना और टक्कर मार के खूना खान कर देना, मतलब इस तरह के वो लोग, मतलब। तो वो आदमी, अब वो तो बाप था, लेकिन वो खुद मैंने आंखों से कई बार देखा, बत्ता लेता था। बत्ता भी कैसा, खतरनाक लोगों से बत्ता लेता था। तो ये कितना खतरनाक होगा। यानी हमारे मोहल्ले में गोश्त की दुकानें लगती थी। गोश्त फरोश जो होते हैं, इनसे आम लोग डरते हैं, बड़ी बड़ी छुरियां होती हैं इनके पास, वो होते भी बिल्कुल ये
लड़ने मरने वाले लोग होते हैं, लेकिन वो लोग भी इन लोगों से डरते थे, वो खानदान कैसा होगा। तो मैं खुद देखता था उसको कि वो दुकानों पर फेरी लगाता था अपनी लेकर झोली या जो भी, कोई बुट्टी डाल देता, कोई नली डाल देता, कोई हड्डी डाल देता, थोड़ा थोड़ा गोश्त डालते, दुकानों पे जाता हो, सब्जी वाले के पास जाता हो, थोड़ी थोड़ी सब्जी डालते। अब वो आदमी कैसा होगा आप समझ सकते हैं। सूद खोरों से ज्यादा खतरनाक था, यूं अगर देखा जाए तो बज़ाहिर ऐसा जालिम। वो इसको भी बुलावा आ गया, बुलावा कहने में हरज नहीं है, बुलावा आ गया, वो फिर कैटेगरी बनानी पड़ेगी कि इसको बुलावा आया और ये अच्छा आदमी नहीं है, इसको बुलावा नहीं आया। वो बेनमाजी जा रहा है, उसको बुलावा नहीं है, तो ये नमाजी, इसको बुलावा है, तो ये बुलावा आया। हज पे चला गया, ये मदीने पहुंचा, हम खड़े हुए थे, कोई वो लड़के और इसके बेटे ने शायद मुझे बताया मेरे बाप का मदीने में इंतकाल हो गया है और जन्नतुल बकी में उसको दफन किया गया। तो मुझे ये मदीना और जन्नतुल बकी और ये सब समझ पड़ती थी, तो मेरे मुंह से निकला काश उसकी जगह मैं होता। और क्या हुक्म लगाओगे मुझ पर, वो आदमी ऐसा जालिम था। तो क्या पता अल्लाह ताला को क्या अदा पसंद आ गई हो और उसको जन्नतुल बकी मिल गई। हो सकता है वहां रो रो कर गिड़ गिड़ा कर उसने सजदों में गिर के तौबा की हो कि मैंने जुल्म में अपनी उम्र गुजार दी, मौला माफ कर दे। तो दरवाजे तो तौबा के बंद तो नहीं हुए ना। तो इसलिए हम किसी के बारे में क्यों बदगुमानियां करें यार, और कोई राय कायम करें, माइनस राय कायम ना करें, प्लस राय कायम करें, अच्छी राय। अल्लाह की रहमत बड़ी, हम कौन से अच्छे हैं यार, मैं सबसे बुरा हूं निगाह करम को। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भाई मुसलमान के बारे में तो हमने ये गुमान करना जिस आपने इरशाद फरमाया, लेकिन अब एक काफिर है, हमें पता है कि ये काफिर है। अब अगर उसका कोई ऐसा एक अच्छा अमल नजर आ जाता है, कोई उसका कोई अच्छी ऐसी चीज नजर आ जाती है, तो क्या उसके लिए तो हम ये गुमान क्या करेंगे कि हो सकता है कि उसे तौबा कर लियो, कि उसका ईमान लाने और उसका तौबा करना हमें मालूम होना जरूरी है। ज़ाहिर है उसकी कुफ्र से तौबा का तो पता चलना चाहिए। हम उसको मुसलमान नहीं कह सकते, जो पता है हमको कि ये काफिर है, जब तक हमें पता ना चले, वरना तो फिर कोई भी काफिर नहीं रहेगा। हो सकता है इसने तौबा कर ली और मुसलमान हो गया हो। जो जिसका जाहिर काफिर है उसको हम काफिर कहेंगे, जिसका जाहिर मुसलमान है उसको मुसलमान कहेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा सवाल, सरकार उसी को बुलाते हैं जिसकी हाजिरी कबूल करते हैं? बुलाते हैं उसी को जिसकी बिगड़ी ये बनाते हैं, कमर बंधना दियारे तैयबा को खुलना है किस्मत का। बूझो तो जाने शेर किसका है? वसाइल बख्श, वसाइल बख्शिश का। चलो कोई 12 माह और दे दो यार। हजरत मौलाना हसन रजा खान का ये शेर है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल